live now. Sir, it's live now. It's live? Okay. प्रदीप स्टार्ट करना। एक थोड़ा रुक जाना यार, एक 5 मिनट रुक जा। तो कहीं जाना है करण? नहीं तो लाइव है तो कर देना। पीपल आर नहीं, वाचिंग। अभी तो लाइव हुआ डार्लिंग। पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग। तो 5 मिनट देना चाहिए ना भाई। अभी 11 बजा है, 11:01 हुआ। चल तो आई विल जॉइन यू इन 5 minutes. I'll just see. No problem, no problem. Krishna, you there? Yes. कृष्णा, अमू भाई ने ज्वाइन किया है, वो अटेंडेंस में बैठा है सर। वो पैनल पे नहीं आ रहा है। जरा वो मनीष को हाँ, वो अटेंडेंस में बैठा है। मैंने सर अबू जी को भेजा था, मैंने सुब्रमण्य जी को मैंने भेजा भी था। भेजा था भाई, लेकिन मनीष को बोलना उनको ले लेवे। ठीक है। डार्लिंग, यू शुड बी ऑन द पैनल। તમારું મોઢું દેખો ના, તમે डार्लिंग તમે પેનલ પર નથી। તમને જે એક ઈમેલ આવેલો પેનલિસ્ટનો, એના પર ક્લિક કરો ને યાર। આમાંથી નીકળી જાઓ। હા, ત્યાંથી પ્રસાદ આપો ને થોડો। આપણે 3-4 મિનિટ રાહ જોઈએ મિહિરભાઈ। Yes, sir. How many people have joined? અત્યારે આપણી પાસે થયા 19. 19. Okay. થોડીક વાર રાહ I'm here જોઈએ। only, sir. Whenever we want to start, we can let me know. Sure, I will tell you. Yeah, sure.
પ્રતિભાઈ યસ બોસ. જેટલા જે ક્યુમાં છે ને એ લોકોને સ્ટાર્ટ એડિંગ કરો પછી એ લોકો ના થાય કે ભાઈ શું થયું કેમ નથી આપણે લોગિન થતું No, they are all here, 21 people already, એમને and we welcome all of them. We ઓકે just wait 2 more minutes. They are still wait. adding, huh? ઓકે 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 Or else we'll start in 2 minutes now, huh? Sure. હાજી હાજી આપણે મીરભાઈ, we can start. अशोक भाई 30 से ज्यादा हो गए हैं तो हम चालू कर लेते हैं, हाँ? So good morning friends. On behalf of EPCH, I welcome you all. आज का जो अपना सब्जेक्ट है भाई, that is on the documentation, notification, GST मैटर, कस्टम्स के नए नए जो रूल्स आते हैं. मैंने देखा है अपने ग्रुप में कई अपने एक्सपोर्टर फ्रेंड्स प्रश्न पूछते हैं कि भैया मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है, क्या करूं, कैसे करूं. तो हमारे साथ जो मिहिर भाई हैं जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो हमें अपना कुछ ज्ञान शेयर करेंगे. तो उनके शेयरिंग के बाद में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे. सो प्लीज आपका कोई भी प्रश्न हो बेझिझक पूछिएगा, मिहिर भाई आपको तुरंत जवाब देंगे. कुछ प्रश्न हमारे लायक हो, EPCH के लायक हो, एक्सपीरियंस के लायक हो, तो हमें बताना. हम हैं, हमारे भालरिया भाई हैं, दीपक भाई हैं. We are all veterans are here, huh? और so let us start. हमारे करण भाई हैं जो बरसों से उनका एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में. ओके, सो मैं हैंड ओवर करूंगा मिहिर भाई को कि जो आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रकाश डालें और थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन दें अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स. Over to Mihir bhai. Thank you. Good morning, everyone. And Good morning. thank you, Pradeep ji. Before I begin, my heartiest wishes to everyone at EPCH for the new year after Diwali. Hope everyone is healthy and safe. Thank you. So, all the panelists from Karan bhai to Shri Amir Javeri sir, Mr. Ashok Bhoop, Deepak ji, Balaria sahab, everybody, and the participants and the attendees of EPCH. Wish you all a very happy new year and wish you all are safe and healthy. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं या whatever topic we planned to share with you, as Pradeep ji mentioned, we are trying to encompass के काफी सारे changes जो आए हैं latest. Now there are so many changes and I'm sure everybody of you have info of it, but how it is relevant to you on day-to-day matters, sometimes it gets skipped out of your idea or it is left out, or there are so many changes that you miss out on something. So with that as an agenda, we thought it's always better that we can do a rebrush exercise where many of things which you are aware of, many of things you might have heard of and it have been missed. तो उसको हमने compile करके specifically जो handicraft exporters को ध्यान में रख के ये बनाया है. I will share my screen with you so that I can share a presentation and then हम आगे बढ़ेंगे. ये Zoom प्लेटफॉर्म पे अच्छा चीज है प्रदीप जी, एक अपना जैसे WhatsApp वगैरह में स्माइली और इमोजीज होते हैं, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन बटन है. तो जिसको मेरी आवाज और ये प्रेजेंटेशन सही में दिख रहा है वो एक अच्छा सा थम्स अप दे सकता है मुझे. पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं और सारे हमारे पैनलिस्ट तो कर ही सकते हैं, तो जिससे कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि आप प्रेजेंटेशन स्क्रीन भी देख पा रहे हैं और मेरी आवाज को क्लियरली सुन सकते हैं. I will keep this in Hindi, English both so that everybody of us can really understand. All right, Mr. Bektak says confirmed yes, smiley, great. Chalo. So one of the
मेजर एजेंसी एज एन एक्सपोर्टर हम जिससे जुड़े हैं, एंड इट इज आवर प्राइम एजेंसी, इज द DGFT. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर DGFT plays our most important role, one of the prime agencies which we are involved with. तो उसके चेंजेस में काफी चेंजेस काफी टाइम से हैं, काफी चेंजेस अभी रिसेंटली है, बट it affects exporters on a day-to-day basis. So let's look at it. On the policy front, एक अपडेट जो ऑलरेडी है टाइम से है, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो कि 15-20 की थी, जो 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया. तो प्रोसीजर पॉलिसी सब कंटिन्यूड रही है until 31st of March 2021. इनफैक्ट 1 अप्रैल 2021 से नई पॉलिसी आएगी जिसके सजेशन रूप, अगर आपको इंडिविजुअली कोई सजेशन देना है, आप सर्टेनली EPCH को लिख सकते हो, या डायरेक्टली DGFT ने एक लिंक प्रोवाइड की है, वो लिंक पे आप गूगल फॉर्म के ऊपर आपका सजेशन, आपकी डिटेल्स, आपके विचार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए डाल सकते हैं, which can be added, which can be considered for making the new policy, which will be effective from 21 onwards, 1st April. इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली है. एक, ऑफ कोर्स हम अभी नवंबर एंड आ चुका है, दिसंबर है, 3-4 महीने बाकी हैं ये पॉलिसी के लिए, बट ये पॉलिसी जो हम प्रोसीजर पहले कर रहे थे वही कंटिन्यू है. बट दूसरी, 1 अप्रैल 2021 से नई पॉलिसी आएगी, तो जो हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होगा. मोस्ट लाइकली डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्किंग विल बिकम मोर एंड मोर, फिजिकल पेपर वर्क विल रिड्यूस्ड, प्रोसीजर विल बिकम सिंप्लीफाइड. तो ये सारे पहलू ध्यान में रख के, बिकॉज अब हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑफ फ्यूचर वी विल बी लुकिंग एट, तो अप्रैल के बाद नई पॉलिसी में चेंजेस जो आएंगे उसको ध्यान में रख के वी शुड कंसिडर अवर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड प्लान अवर एक्शंस अकॉर्डिंगली. इनफैक्ट जो मैं अज्यूम कर रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं कि नई पॉलिसी में डिजिटल और ऑनलाइन का बहुत ज्यादा यूज होगा, बिकॉज द फोकस इज ऑन 2 थिंग्स, डिजिटल एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके, जितना सिंप्लीफाइड हो सके, दैट इज व्हाट द फोकस इज. ये ऑलरेडी काम DGFT में चालू हो चुका है इन अ वेरी बिग लेवल. They have relaunched their own website. They call it a DGFT platform. वेबसाइट एड्रेस सेम रहता है dgft.gov.in. मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसमें, बिकॉज हमारे अगर आज 30 एक्सपोर्टर्स हैं, आई डोंट नो कितने जन ने ये नया प्लेटफॉर्म या नई वेबसाइट देखी है और कितने जन ने इस पे रजिस्टर किया है, बट ये जरूरी है. सो जो आपकी पहली वेबसाइट थी, इनफैक्ट वो नई लुक में आ गई है, नया कलर स्कीम, नया सिस्टम, नई उसकी ओवरव्यू है. ये सिर्फ आउटर ओवरव्यू नहीं है, बैकएंड में सपोर्ट में बाकी काफी सारा चेंजेस हैं, and it's a very good robust website and a new platform. I'll give you a very simple example. Many of you might have been facing, अगर आप DGFT के incentives वगैरह क्लेम कर रहे हैं, तो you had a problem. अगर आप Google Chrome में या Firefox में ओपन करो तो नहीं ओपन होती है साइट, you can only use Internet Explorer. ये सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया. In fact, it has become very user friendly, very simple. I want to add that they have gone far beyond the current IT technology also, and they have added new technologies. Government, DGFT has added. अगर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे, एक छोटा सा एक पिक्चर है, एंड उसके नीचे लिखा है आस्क वाही. ये आस्क वाही, वाही इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट अप इन दिस वेबसाइट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन चैटबॉट है. आप उनके साथ चैट कर, यानी आप अगर आर्टिफिशियली इट इज गोइंग टू आंसर यू योर क्वेश्चंस. तो अगर आप आस्क वाही में जाके अगर क्लिक करके अगर आप लिखेंगे मुझे IC ओपन करना है, इट विल गिव यू द आंसर, एंड नॉट ओनली इट विल गिव यू आंसर, इट विल गिव यू द नोटिफिकेशन. It will also probably give you some YouTube videos of DGFT which they have created on how you want to use the platform. So it's a very user friendly, very supporting, and it is very, very useful. We've already migrated certain services on this new platform. Please understand, 7 जुलाई 2020 से हमारा ये प्लेटफॉर्म चालू हो चुका है. DGFT ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, which means we have to start using it. ये प्लेटफॉर्म पे फेज 1 में, सॉरी नॉट 7 जुलाई, 13 जुलाई, I made my mistake, 13 July was the date. And
In fact, the new modules are going to be starting very soon. नए फर्स्ट मॉड्यूल में अभी सिर्फ आईसी यानी आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, उसके मॉडिफिकेशन, उसके रंग रूप या उसकी कोई भी आपको इश्यू है. In between they have also added the query module, जो contact@dgft करके एक मॉड्यूल है queries के लिए. That is also been updated and it has been put in the new platform. इसमें थोड़ा मैं ध्यान आपका दोरूंगा, या I will want to make you understand this very category, because even the department is pushing hard, because it is going to be the new platform and everybody has to someday come on to it. ये प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट देन व्हाट यू एक्जिस्टिंग हैड. पहले ये था कि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती थी. हमारे पास आईसी होता था, हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर की होती थी और हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर लेते थे. अभी इसको इन्होंने एक लॉगिन प्रोसेस से बनाया है, वेयर इट विल बिकम लाइक अ डैशबोर्ड. सो एवरी कंपनी कैन हैव देयर ओन डैशबोर्ड व्हिच विल हैव ऑल योर लाइसेंसिंग डिटेल्स, ऑल योर IEC डिटेल, ऑल योर एप्लीकेशन डिटेल्स, आपकी कोई प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड पे दिखेगा, जैसे एनी अदर पोर्टल, एनी अदर वेबसाइट जहाँ पे आप लॉग इन करते हैं और आपको आपका सारा इंफॉर्मेशन मिलता है. ऑन द राइट हैंड एक्सट्रीम कॉर्नर यहाँ पे आपको एक लॉग इन का बटन है, वेर यू विल लॉग इन. ऑब्वियसली क्योंकि आपका लॉग इन नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ लॉग इन. वेरी सिंपल प्रोसेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. So let's say if Karan ji is making it, it will be Mr. Karan Jetwani. इनका email ID, इनका mobile number, pin code, and that's it. The district, state and city will district and state will automatically pop up. वो automatically pin code से map कर देगा. आप city नाम डालिए, capture डालिए, submit करिए. As soon as you will submit, Karan ji will get 2 OTPs, one on mobile, one on email. This is a authenticated verification. एक नहीं, दोनों पे आएगा. Once Karan ji mentions that, what happens is he gets a temporary password and his login is created. Simple. कोई rocket science नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है. On that temporary ID, he can go to login, open that with a temporary ID, और जहाँ जैसे normally हर जगह पे होता है, जो आपको temporary email ID, temporary password मिलता है, उसको आपको reset करना होता है. आप password reset करिए, you are through, your login on DGFT portal is created. So करण जी का अगर login create हो गया तो इस तरीके से दिखेगा. ये मैंने नाम थोड़ा वाइप ऑफ किया, which would be in this case it would say Karan's dashboard because that is his name which has been put up. If it would be have been Krishna's dashboard, it would say Krishna's dashboard. Now this is the dashboard. Now please understand, इस point of time पे करण जी ने सिर्फ अपना dashboard create किया है which has no link with his data. Because इन्होंने email ID और mobile number दिया, करण जी के email ID मोबाइल नंबर से उनका export data नहीं मालूम पड़ेगा. या दीपक जी ने सिर्फ नाम या ईमेल आईडी से दिया है तो इससे नहीं. तो इसको जो सेकंड स्टेप करना है, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इज इफ यू आर अ न्यू एक्सपोर्टर, ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई योर आईसी, बट हमारे कोई भी मेंबर्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स, सो यू विल हैव टू गो एंड क्लिक ऑन लिंक आईईसी. ये लिंक आईईसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉगिन तो कोई भी नाम से बन जाएगा, बट आईसी को लिंक करने के लिए ऑथेंटिकेटेड पर्सन, मैं करण जी का आईसी यूज करके नहीं लिंक कर सकता, या दीपक जी किसी और का आईसी, क्योंकि एवरीबडी हैव टू यूज देयर ओन आईसी एंड लिंक इट. सो देयर हैज टू बी एन ऑथेंटिकेशन. सो यू क्लिक ऑन लिंक आईसी, इट विल ऑफर यू अ ऑप्शन वेयर यू हैव टू पुट योर आईसी नंबर एंड यू हैव 2 ऑप्शंस टू लिंक इट. नाउ ये थोड़ा टेक्निकल है बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना आगे आप नहीं बढ़ पाओगे. और अगर आप नहीं बढ़ पाओगे, इट इज नॉट नाउ, after 1 month, after 10 days rather, from December onwards, from January onwards, आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे. So it is better that we have time for next 15, 20, 1 month, that we make sure that we are on the system. So there are 2 authentication systems. One is a DGFT, one is a digital signature option, or one is the Aadhaar sign. Both alternate, either of the options can be used. So if assuming you're a proprietor, partner, director, and you have an Aadhaar number, and your Aadhaar number has a linked mobile number separate, ये DGFT की बात नहीं कर रहे हैं, हम आधार की बात कर रहे हैं. बट अगर आपके पास ये linked है, but you should be a proprietor, partner, director of the company, in that case you can go and opt for Aadhaar verification, where you can click on Aadhaar e-sign, put your Aadhaar number, and OTP will come to a mobile number which is registered with Aadhaar, which can be same number or it can be another number. And if your data in Aadhaar and the data in your IC is same, that is year of birth, name, then the application will get linked to it.
तो ये बहुत ज्यादा रोबस्ट है. हमारे पास काफी इश्यूज आए हैं वेयर एग्जांपल प्रदीप जी का अगर नाम पैन कार्ड पे PRADEEP है और आधार पे PRADIP है, then it will not authenticate because it is a mismatch. Or instead of, let's say, Mr. Pradeep Muchala on Aadhaar, but PAN card पे आया है Muchala Pradeep, it will not get authenticate because जिस हिसाब से वो मैच करेगा वो exactly same होना चाहिए. And this is important because प्रदीप जी IC only प्रदीप जी should able to connect. इसके लिए इसको authenticate, इसको secure करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Alternate option है, you can use a digital signature. इसमें अगर आप इंडिविजुअल है तो आप कोई भी क्लास 2 क्लास 3 सिग्नेचर जिसमें आपका नाम और आपके आईसी रिकॉर्ड में प्रोप्राइटर का नाम मैच हो जाए. अगर पार्टनर या डायरेक्टर है तो भी सेम, और या कंपनी का नाम मैच हो जाए. Many of you or most of you, at least the veterans and the regular exporters, are claiming MEIS, advanced license, EPCG from DGFT. तो उनके पास एक DGFT का सिग्नेचर होगा जिसमें IC नंबर मैप होता है, जिसके की के अंदर IC नंबर एक एम्बेडेड है. If that is there, that also will work. आप वो की लगा के immediately लिंक कर सकते हैं इसमें कोई. So it will verify the IC number and it will allow you to do it. It may not mean, so somebody says, let's say प्रदीप जी बोलते हैं कि भाई मेरा IC की जो डिजिटल की है वो मेरे दूसरे डायरेक्टर के नाम पे है IC की DGFT. That is not a problem because in that the IC number is mapped and not the name of the person. ये मैप होना से, ये जो आधार की मैंने आपको बात की इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ क्या पैन नंबर और नाम मैच करता है, तो जो डैशबोर्ड आपने पहले देखा था उसमें 2 चेंज हो गए. वो अप्लाई और आईसी चेंज हो गया और वैलिडेट है उसमें यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, आपका आईसी कोड आ जाएगा, आपका आईसी का स्टेटस वैलिड है कि नहीं, आप अगर डिनाइड एंटिटी लिस्ट में है कि नहीं, ये सारा कुछ आ गया. नाउ दिस इज योर डैशबोर्ड. इट विल टेल यू व्हेन डिड यू लास्ट update your IEC, because abhi aaj ke din tak it is only related to IEC and IEC modification. Effective most likely from 1st of December, you will find other services also coming up. तो आपकी और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी. इन शॉर्ट ये प्रोसेस करने से उसके बाद आप जब भी लॉग इन करेंगे आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, विच इज समथिंग लाइक योर कंप्लीट पिक्चर विद DGFT सिंगल विंडो ऑप्शन. It has got fantastic connectivity with all the other departments. So the minute you update your IC, it will verify the data with, if you're a private limited company with registrar of companies, ROC से data verify करेगा, DIN number, address वहाँ से pull out करेगा. It is verify the data as per PAN, so CBDT, income tax से वो data verify करेगा. GST, in fact the update which you do, the real time update happens even in customs. हम जनरली आईसी को अपडेट करने में जनरली 24 to 48 आवर्स का टाइम रखते हैं कि आप आईसी में कुछ अपडेट करो, तो कस्टम में आते आते 24 से 48 आवर्स लगते हैं. आई हैव सीन इट विद एक्सपीरियंस एंड इवन यस्टरडे आई हैव डन इट. इट हैज हैपेंड इन नॉट लेस देन 20 मिनट्स. आपने आईसी अपडेट किया, इंस्टेंटेनियसली आईसी अपडेट होता है, एंड आई वुड से नॉट लेस देन 20 मिनट्स, मोस्ट लाइकली तो इंस्टेंटेनियसली, बट इन नॉट लेस देन 20 मिनट्स, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, it has got updated in the custom server also, and the branch which was added was able to be seen in the customs ICE gate, and the party, the importer, could clear his cargo in fraction of second time. So the website is very, very good. It has been updated fantastically. It has got very helpful features. My request is, please, as you can see, there is already an update by the department. There's a trade notice by DGFT that they are going to start the advance authorization, the EPCG and everything online by December. And the insistence or the request is that maximum or all of the exporters should get registered on this new platform. We have about more than 30 plus exporters. If all of us register and get ourselves online done, I think it will be a very, very good and helpful exercise on behalf of EPCH also, and on for all our exporters, that we should be ready before we want to, before the, you know, the new amendment comes in. In fact, there is an update as of now, and I'll come to that update in a bit. For all those who have just a query that what happens to the old matters which are not on the new module. आज IC है नया module पे,
और एडवांस लाइसेंस या ईपीसीजी आएंगे तो हमारा MEIS को क्या होगा, हमारा दूसरे स्कीम्स को क्या होगा, दोज आर ऑल अवेलेबल। अगर आप नए मॉड्यूल में जाएंगे, एक ऑप्शन है ऑनलाइन ई-कॉम एप्लीकेशन, वो आपको आपके पुराने मॉड्यूल पे लेके जाएगा और वो मॉड्यूल पे ही आप जैसे पहले काम कर रहे थे DGFT की डिजिटल की के साथ, आप वही तरीके से आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, द सिस्टम इज वेरी वेरी रोबस्ट, इट इज लिंक्ड द ओल्ड मॉड्यूल विद द न्यू मॉड्यूल, और जो जो ओल्ड पे है वो ओल्ड पे चलेगा, जो नए पे जैसे माइग्रेट होते जाएगा डेट वाइज, इट विल नाउ मूव ऑन टू द न्यू मॉड्यूल। As I was mentioning, effective from today, आज 12 बजे यानी करीब करीब 4 मिनट के बाद, आज 12 बजे दोपहर को 4 मिनट के बाद से 30 नवंबर तक, यानी ये पूरा महीना 10 दिन, अभी एडवांस ऑथोराइजेशन ईपीसीजी या DFIA के लाइसेंस की अमेंडमेंट, करेक्शन, रीवैलिडेशन या उस तरीके का कोई भी काम नहीं होगा। आई रिपीट, एडवांस लाइसेंस रिलेटेड, ईपीसीजी रिलेटेड या DFIA अमेंडमेंट का, रीवैलिडेशन का, कोई वैल्यू एनहांसमेंट का, ये काम अभी 10 दिन तक नहीं होगा, बिकॉज दे आर माइग्रेटिंग दिस ऑनटू द न्यू मॉड्यूल। इनफैक्ट आज से लेके आई थिंक अबाउट टुमारो, 20 और 21 तारीख तक, 12 बजे दोपहर से 21 तारीख तक, there will be a shutdown of the e-com module as well. वो system upgradation है, that is not a major issue. ये इसके लिए ये वाला जो मॉड्यूल माइग्रेशन है, because from 1st of December ये सारे आपके काम है जो इनवैलिडेशन वाला है, रीवैलिडेशन है, कोई वैल्यू एनहांसमेंट है, ये सारा कुछ एक्सटेंशन वगैरह का काम completely online module में चला जाएगा, which means you will have almost not to submit any documentation. There will be a procedure processes announced, and you will be able to track them live on the system. It will be on a click of a button, and it will be very, very simple and easy to operate and manage these operations as far as advanced license, EPCG and DFI is concerned. Let me clarify. अगर आपको कोई नया एडवांस लाइसेंस या नया ईपीसीजी ऐसा कुछ चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज कंटिन्यूड। ये डाउन टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन के लिए है। नए लाइसेंसेस चालू रहेंगे, सिवाय कि आज दोपहर को 12 बजे से कल तक वो जो नॉर्मल सिस्टम अपग्रेडेशन है उसकी वजह से अगर बंद है तो। So once again, I request all of you to please register, get yourself updated on this website. It's a very simple process. My suggestion as a principal is, at the moment, to begin with, kindly create a login ID and a password with one of the directors or the owner's name, you know, the one who is in the IC. Now maybe कि आपका operation कोई आपका general manager या आपका CFO या आपका CEO कर रहा है, there will be a time or there is an option available where you can create users, and below your user you can have certain access. But at the moment, to begin with, I would prefer to have, it's just my preference, it is not a law, you can create it on any login email ID, but I prefer that it could be on at least one of the director's name or a owner's name, which will help you in a long term, and it will make sure that the emails don't get missed or intimations don't get missed. So that gives you an update on the DGFT portal, जो website हम बात कर रहे हैं. Second online development जो काफी टाइम से है, इसको हमने और डिपार्टमेंट ने और इंक्रीज किया है, is a portal for your preferential certificate of origin. जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो आप APTA, SAPTA, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या कई इंडिया आसियान FTA एग्रीमेंट में एक्सपोर्टर को जब आप इंपोर्टर को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको दे गेट सम ड्यूटी बेनिफिट. तो ये ड्यूटी बेनिफिट लेने के लिए आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है, विच इज इश्यूड जनरली बाय एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी EIA. कुछ अलग अलग अदर एजेंसी से भी है, FIO भी है, टेक्सटाइल कमिटी भी है. तो उनको जब आप अप्लाई करते हैं, अभी तक ये मैनुअल था, काफी वाले स्कीम्स, काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव नाउ मूव्ड ऑन कंपल्सरी ऑन द ऑनलाइन पोर्टल विच इज coo.dgft.gov.in. इसमें पहले 3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे. 7 अप्रैल 2020 के बाद और 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐड हो गए हैं. तो ये सारे ऑनलाइन है
और अभी वेरी रिसेंटली 15 अक्टूबर से और 4 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी उन्होंने ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि इन टोटालिटी 3 + 6 9 + 4 13 free trade agreements are online compulsory, जिसका end to end आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, उसका प्रोसेसिंग होगा डिपार्टमेंट से ऑनलाइन, क्वेरी रेज होती है तो भी ऑनलाइन रिप्लाई करना है, और फाइनल सर्टिफिकेशन विद क्यूआर कोड और डिजिटल सिग्नेचर इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 कंट्री में कुछ इश्यू आए हैं जिसको डिपार्टमेंट ने रेज, आई मीन एक्सपोर्टर ने रेज किया और डिपार्टमेंट ने एग्री किया है, विच इज थाईलैंड एंड वियतनाम, जहां पे डिजिटली साइंड क्यूआर कोड वाला अप्रूव एक्सेप्ट नहीं हो रहा है पोर्ट पे, तो वो तो इश्यू होगा ही, साथ में आप EIA ऑफिस जाके स्टैम्प साइन किया हुआ भी कॉपी ले सकते हैं एडिशनली, जो आप कस्टम्स को दे सकते हैं आपके बायर को। माय रिक्वेस्ट टू एक्सपोर्टर्स इज, अपार्ट फ्रॉम थाईलैंड वियतनाम, अगर आपको ये डिजिटल साइंड COO का अगर कोई दूसरी कंट्री से इश्यू आ रहा है, जैसे एक वेबिनार में मैं डिस्कस कर रहा था तो किसी ने बोला सर बांग्लादेश कस्टम नहीं मान रही है आजकल, दे वांट अ पेपर एंड पेन वाला सर्टिफिकेट, या कोई दूसरी कंट्री में अगर आपको आ रहा है, माय रिक्वेस्ट विल बी प्लीज हाईलाइट इट टू EPCH, इन्फॉर्म प्रदीप जी, सो ही कैन टेक इट अप टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज और उसका कोई आगे काम कर दिया जाए। भरत पारेख भाई से इंडोनेशिया में सेम प्रॉब्लम है, सर माय रिक्वेस्ट विल बी प्लीज राइट टू EPCH so that they can take it to the right people in the department, and see it's a mutual thing, even we are accepting that digital, so I mean it has to be taken to the right desk, इंडोनेशिया डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए और दोनों को डिजिटली एक्सेप्ट करने में कन्विंस करना चाहिए। तो द मिनट यू हैव दिस प्रॉब्लम, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज प्लीज मेक अ समरी ऑफ द इश्यू, इफ यू हैव सम रिटन मटेरियल send it to EPCH so that they can take it to the right authorities, and it will be benefiting to everybody who is dealing with Indonesia, it's not only you. So you have to again as he says, this is the module, this is a screenshot, again it's an online thing, it's a DGFT, digital signature based. मेरा ये मानना है very soon even this will get plugged into that online portal, जो अपना बड़ा पोर्टल, जो अपना मेन पोर्टल है उससे ही एक्सेस हो जाएगा, ये मेरा मानना है, ये हुआ नहीं अभी तक। सो द फास्टर यू डू, यू आर एट ईज कि आपको जितने सर्विसेज जो अभी सिर्फ IEC पे सीमित है, वो सारे सर्विसेज आपको थ्रू वन सिंगल लॉगिन मिलेंगे। सो यू बेटर रजिस्टर एंड गेट योरसेल्फ वर्किंग। इसके अलावा हमारे DGFT के ऑनलाइन ऑलरेडी EBRCs चल रहे हैं, इश्यूएंस सब कुछ ऑनलाइन है, आपको लाइसेंसिंग वेदर इट एडवांस है, EPCG है या MEIS है, ये सारे ऑनलाइन मिलते हैं, देयर इज नो फिजिकल कॉपी, व्हाटएवर यू डाउनलोड द PDF इज द फाइनल कॉपी। ट्रांसफर अगर आपको MEIS, आपको SES नहीं लगता, बट MEIS अगर आपको ट्रांसफर करना है, किसी को बेचना है, तो दैट्स एन ऑनलाइन ट्रांसफर कंपलसरी, and an help desk which is available at contact@DGFT, ये भी ऑनलाइन है। In short, what we are trying to tell you is the reduction in complete physical document and paperwork. It is everything which is going online, left, right, and center. That's the game changing thing which is happening, and we have to become now a little bit more of techno savvy, or I would say digital savvy exporters, rather than just being merely an exporter. Few policy updates which I'm sure all of you are awaiting and having on a regular updates from EPCH as well. We all know MEIS has continued till 31st of December. There was an update that it will be closed along with RODTEP, and RODTEP will come as soon as it comes, it will be closed. I'm sure everybody is stuck with not able to apply for MEIS from the current financial year, April 1, 2020 से आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। इसके लिए भी एक clarification आ चुका है, there's a notification which has announced a ceiling. So September 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, ये 4 महीने के लिए आपका MEIS कैप कर दिया गया है 2 करोड़ रुपए पर IC होल्डर के लिए। So if you are export benefit MEIS more than 2 crores, I'm sorry, you will not get for this 4 months total, 4 महीने का total. Also they have also make sure कि आप नया IC अगर 1 सितंबर के बाद लिया है तो आपको MEIS नहीं मिलेगा, and if you do not have any export from September 2019 to August of 20, you will not get MEIS in that case as well. अगर ये टोटल किटी
साढ़े 5,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई तो ये 2 करोड़ की लिमिट को शायद कम भी किया जाएगा। 1 जनवरी 2021 के एक्सपोर्ट्स, वो डेट के एक्सपोर्ट के बाद आपको MEIS नहीं मिलेगा। सो अगेन योर कैलकुलेशन हैज टू बी देयर। ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड एक नई स्कीम रॉटटेप करके है वो आएगी, जिसकी और डिटेल जैसे आई जाएगी वी विल हैव अनदर वेबिनार and I'm sure we will be able to pass on exact information rather than speculative information. In practice, what has happened today, let me give you our current position. The current position is MEIS server is under maintenance. They are updating the system because as you can see, ये सितंबर से दिसंबर का है, so एक अप्रैल से अगस्त का एक अलग मॉड्यूल होना चाहिए और सितंबर से दिसंबर का अलग मॉड्यूल होना चाहिए because फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से चालू होगा। तो ये सारा कुछ वर्किंग चल रहा है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव गॉट सम इंटरनल डॉक्यूमेंट व्हिच वाज मूविंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर लास्ट वीक के ये MEIS का अप्रूवल आ चुका है, लिमिट सैंक्शन हो गई है फाइनेंस से, DGFT विल क्लियर इट। लेट्स गाइस नॉट गो इनटू द डिटेल, वो इंटरनल प्रोसीजर है। एज एन एक्सपोर्टर you cannot apply for MEIS unless until it is available in the system. Very simple. As on date, what it says, the DGFT website, even today, before even we logged in, I checked, it says MEIS module is under maintenance. What I believe is the maintenance is nothing but they are creating a platform, they are creating the working where 1st April 2020 से 31 अगस्त का आपका MEIS अलग से बनेगा और 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक का MEIS का मॉड्यूल अलग से बनेगा। ये सारे पैरामीटर्स को चेक करके फिर आपको MEIS मॉड्यूल चालू करके मिल जाएगा। My sense is by next week we should be able, or next week, early next week, or maybe end of next week, we should be able to start filing MEIS for this financial year. That's my hopeful thinking, क्योंकि काफी लंबे टाइम से अभी बंद हो चुका है। And this is a weekend, so maybe next week से ये चालू हो जाएगा। But the planning which an exporter has to do, ये ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2021 से MEIS आपको नहीं मिल रहा है। Now this is, or this may be slightly pinching to handicraft exporters, especially because आपका शायद रेट अच्छा था, 3%, 5% MEIS था, and you were able to get that very happily, which is not going to come. So please factor in ROTTEP जब ये आएगा, ROTTEP का रेट जो आएगा, that is the point of time that we will have to examine कि उसका फैक्टर क्या मिलेगा आपको in form of incentives. कुछ HSN कोड में चेंजेस आए थे, नॉट मेजर इश्यू, आई हैव चेक्ड इट, नॉट इन मेजर इन हैंडीक्राफ्ट, बट अगर HSN कोड में चेंजेस आए थे 1 जनवरी से, जिसके वजह से हो ये रहा था कि एक्सपोर्ट शिपिंग बिल फाइल होता था नए HSN कोड पे, बट MEIS आप नहीं अप्लाई कर पा रहे थे बिकॉज MEIS के मॉड्यूल में वो नया HSN कोड नहीं इंस्टॉल था। तो आपका एक्सपोर्ट तो रुक रहा था, तो आपको HSN कोड नया ही डालना बिकॉज HSN कोड अपडेट हो चुका था। But MEIS अब January, February, March में नहीं अप्लाई कर पाए because of these problem. That problem has been addressed and by public notice on 10th of July, it has been rectified and it has been now available for you to file. Just a quick update for general large exporters, just for your reference. अगर आप advance authorization ले रहे हो, अगर आप कुछ raw material import कर रहे हैं for your manufacturing, like I'm sure हितेन भाई अगर कुछ स्टील का आइटम्स रॉ मटेरियल्स कर रहे हैं या कोई रॉ मटेरियल्स कोई दूसरे हमारे टेक्सटाइल वाले हैंडीक्राफ्ट वाले कर रहे हैं, देन इन दैट केस एज अ मैटर ऑफ कोविड देयर इज ऑलवेज बीन देयर इज अ जनरल अपडेट कि अगर आपकी कोई भी एक्सपायरी, कोई भी डेट एडवांस लाइसेंस में 1 फरवरी से 31 जुलाई के बीच में है, एक्सपायरी ऑफ योर लाइसेंस, आपका एक्सटेंशन, आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का डेट, कोई भी आपके नॉर्म्स के डेट अगर 1 फरवरी से 31 जुलाई के बीच में एक्सपायरी हो रही है, देन इट इज ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स। सो ये 6 महीने का एक्सटेंशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। काफी केसेस में ये इश्यू आता है कि कोई किसी का अमेंडमेंट हो चुका हो और उसके वजह से डेट अपडेट नहीं हो कस्टम में, देन यू माइट हैव टू गो टू द DGFT एंड गेट दैट अमेंडमेंट रिकॉर्डेड, तो सिस्टम से वो हो जाएगा। सिमिलरली इट इज इवन फॉर EPCG, अगर आपने कोई मशीन्स लिए हैं, आपके कटिंग के, आपके स्टिचिंग के, आपके फैब्रिकेशन के कोई इक्विपमेंट आपने लिए हैं जिसके अंदर EPCG का बेनिफिट अगर आपने लिया है, देन इन दैट केस अगेन द टाइम पीरियड व्हिच इज एनीथिंग व्हिच इज एक्सपायरिंग बिटवीन फरवरी एंड जुलाई, ये थोड़ा ध्यान इसके लिए रखना है सर फ्रेंड्स, बिकॉज हम जब ये सर्कुलर आया, ये मार्च में आया, तभी हमको बहुत अच्छा लगा था बिकॉज टाइम बहुत बढ़िया था कि फरवरी से जुलाई एंड 6 महीने का एक्सटेंशन।
Now, if you practically look at it now, guys, we are in November. अभी फरवरी में अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है कोई डेट, 6 महीने अगस्त हो गए सर, वो तो खत्म भी हो गया, वो पीरियड भी खत्म हो गया. नॉट ओनली दैट, थिंक अबाउट इट, जुलाई से अगर मैं 6 महीने ऐड करूं, यानी 7 + 6 13 हो जाएगा, यानी वो जनवरी में वो भी एक्सपायर हो जाएगा. सो आइडियली यू हैव ओनली नो 2 more months. सो काफी लोगों का ऑलरेडी एक्सटेंडेड पीरियड भी खत्म होने की टाइम पे है. सो प्लीज एग्जामिन योर लाइसेंस इंडिविजुअली, और अगर आपको उसके बाद कुछ उसका एक्सटेंशन चाहिए, देन एज पर पॉलिसी अगर प्रोविजन अवेलेबल है, जो भी करके अप्लाई कर सकते हैं. ये मेरा बहुत आप सबसे रिक्वेस्ट है. आई एम श्योर एवरीबडी हैज डन इट. आइडियली कृष्णा या प्रदीप जी इंसिस्ट करते होंगे आप सबको, बट ये मेरा रीजन अलग है आपसे बताना. जब भी कोविड आया, लॉकडाउन की वजह से वी कुडंट डू लॉट ऑफ रिन्यूअल. अपनी मेंबरशिप जो है काउंसिल की, काफी जन नहीं कर पाए. कुछ पेपर सबमिट करने हैं, कोई एप्लीकेशन करनी है, वो नहीं कर पाए थे. एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी ऑल अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई भी डीजीएफटी का लाइसेंस चाहिए, MEIS अप्लाई करनी है, आपके पास एक वैलिड RCMC होना चाहिए. RCMC की वैलिडिटी हर साल की होती है, आपको रिन्यूअल करना है पैसा भर के, एनुअल फीस भर के. डीजीएफटी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम ये रिन्यूअल ऑफ वैलिड RCMC 31 सितंबर तक इग्नोर करेंगे. यानी आप 30 सितंबर तक हम आपको ऐसे ही दे देंगे. अगर आपके पास ऑलरेडी RCMC है, आपने भले ये साल के लिए रिन्यू नहीं किया है, हम इग्नोर करेंगे. फ्रेंड्स, आज हम 20 नवंबर पे हैं, सितंबर खत्म हो गया. आई एम वेरी श्योर ऑल काउंसिल्स इंक्लूडिंग EPCH are working very well in whatever best possible manner. Most of them have become made renewals online. तो आप सारा कुछ पेमेंट, आपकी RCMC की फीस ऑनलाइन जमा करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. My request is do not wait for the last moment. अभी तक एक्सटेंशन बिना आप RCMC कर रहे थे, but now it is important that you renew your membership. Make sure you have paid your fees so that आपके 2021 करंट ईयर की आपकी RCMC की फीस भर दी हो, आपके पास रिन्यूड वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है. कुछ पॉलिसी डिसीजन बहुत कंफ्यूजिंग थे. आई नो यू आर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स, बट काफी एक्सपोर्टर्स, और मैं जो ग्रुप में भी देख रहा था EPCH के अपने व्हाट्सएप पे, काफी एक्सपोर्टर्स को काफी जनरल इंक्वायरीज भी आ रही है, whether it is related to mask, whether it is related to COVID items. So very general update, what has happened on current position. Just to give you an update before we go into the details of the slides, सारे COVID related items, almost सारे अभी फ्री हो चुके. ऑलमोस्ट, कुछ हैं जो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे मेडिकल गॉगल्स हैं या कुछ हैं, बट मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर नाउ फ्रीली एक्सपोर्टेबल. ओके, so the ones which are related to you somehow or directly or indirectly, I have taken those and I have given you an update. So issue आया था हैंड सैनिटाइजर का. पहले हैंड सैनिटाइजर में ऐसा था कि अल्कोहल और नॉन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर में से नॉन अल्कोहल को फ्रीली कर दिया था, फिर अल्कोहल बट विदाउट अ डिस्पेंसिंग पंप. जो पंप वाला है वो बंद, उसके बिना अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो. अभी अक्टूबर से पंप हो या ना हो, एवरीथिंग इज अलाउड फ्रीली. सो हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स आप फ्रीली अभी एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विच मीन्स नॉन अल्कोहल भी कर सकते हो. इन शॉर्ट, हैंड सैनिटाइजर में कोई अभी दिक्कत या कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नॉन वोवन फैब्रिक, ये भी एक कॉमन एक्सपोर्टर का रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट फॉर हैंडीक्राफ्ट. सो नॉन वोवन फैब्रिक एक्सेप्ट फॉर मेल्ट ब्लोन, जो 3 लेयर मास्क बनता है, उसके जो बीच में वाला प्लाई है, which is the melt blow fabric, उसको नहीं कर सकते. उसके अलावा कोई भी नॉन वोवन फैब्रिक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. PPE किट, भरत भाई आपका आंसर इसमें आ जाएगा. सो PPE किट का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट PPE किट में काफी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम फ्री, बट आई विल टेल यू व्हिच आर द वंस व्हिच आर नॉट. सो मेडिकल कवरऑल्स, जो कवरऑल्स लगते हैं वो फ्री हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. मेडिकल गॉगल्स जो है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, यानी उस पे कोटा है. 20 लाख यूनिट्स एवरी मंथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने परमिशन ली हो DGFT से. N95 मास्क और नॉर्मल मास्क तो फ्री हो चुके थे, 3 प्लाई 2 प्लाई. N95 मास्क भी फ्रीली एक्सपोर्टेबल हो चुके हैं. फेस शील्ड, जो एक प्लास्टिक का जो प्रोटेक्शन है, दैट इज ऑल्सो बिकम फ्री.
भरत भाई, जो आपका क्वेश्चन था, नाइट्राइल एंड एनबीआर ग्लव्स पहले प्रोहिबिटेड थे, अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ चुका है। अक्टूबर और नवंबर का कोटा खत्म हो चुका है। 6th of November was the last day to apply. So now NBR gloves या nitrile gloves are under restricted category for month of October and November. The period to apply for the application of quota is closed because वो 2 नवंबर से 6 नवंबर तक करना था। अभी आई थिंक फॉर दिसंबर या तो ये पॉलिसी फ्री हो जाएगी, या दिसंबर के लिए जब कोटा का डेट आएगा, Bharat bhai, you can apply for it, and then if eligible, you will be able to export that quantity as far as if you are given that permission. So nitrile gloves और NBR gloves are restricted. Quota है, उसपे आपको apply करना है, permission लेना है, only then you can export. I'm not too sure how many of you, but I'm sure handicrafts में काफी सारी item हैं जो कि metal based हैं, और उसमें import of raw material भी होता होगा. So it was very well thought कि I should guide you and I should inform you on this. एक steel item import करने में there is a registration required. किसी के लिए भी, सबके लिए, अगर आप steel import कर रहे हैं तो आपको एक SIMS number, Steel Import Monitoring System number register करके पैसे भर के लेना पड़ता था. वो कुछ 284 items के लिए था. अभी from 16th of October ये policy decision change हो चुका है, और I'll repeat कि चैप्टर नंबर 72, 73 या 86, चैप्टर 72 आयरन एंड स्टील है, चैप्टर 73 आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील है, और 86 मशीनरी एंड मैकेनिकल अदर आर्टिकल्स है. ये कोई भी पार्ट अगर आप लेते हो आपके फैक्ट्री के लिए, आपके रॉ मटेरियल के लिए, आपके किसी चीज के लिए या ट्रेडिंग के लिए भी, देन आपको सिम्स नंबर लेना अभी कंपलसरी है. आपको रजिस्ट्रेशन करना है. मिनिमम रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन पहले करना है. आपका वेसल आने के 15 दिन पहले यू हैव टू रजिस्टर. द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 60 डेज, सो टोटली 75 डेज. 60 डेज प्लस 15 डेज आपने एडवांस में किया है. और ये सिम्स नंबर के बिना आप ये 3 चैप्टर की आइटम, चैप्टर 72, 73 या 86, आप, मैं, प्रदीप जी, अशोक जी, कोई भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा. सो एवरीबडी हु वांट्स टू इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट, so whenever you are importing anything and if it is under chapter 72, 73 and 86, please note आपको सिम्स नंबर लेना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है. Now just for your understanding how things have changing and coming to the new portal, सिम्स नंबर की जो प्रोसीजर पहले बाहर से होती थी, anybody could apply and submit through digital signature, is now gone inside the new website. जो अपना DGFT का प्लेटफॉर्म है उसके लॉगिन के बाद ही आपको मिलेगी. तो ये जो हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे पहले आईसी आया, अभी ये सिम्स नंबर शायद कम लोगों को अफेक्ट कर रहा है अपने मेंबर्स में से, बट व्हाट इज मेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज एक एक चीज अपने नए मॉड्यूल में जा रही है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. शायद मेरे प्रेजेंटेशन का जितना टाइम था ना, उसके हाफ द टाइम में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इतना सिंपल. Quick update on certain things in customs and GST. Customs में import angle से या export angle से क्या changes आए हैं? Of course, we all know IceGate is our biggest tool in customs. So जैसे DGFT का website is for all our export related, IceGate has become a common tool for export related, custom related activities. सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है. कस्टम्स में भी पहले हम इनवॉइस पैकिंग लिस्ट सबमिट करते थे, अभी कोई पेपर, कोई अटेस्टेशन करके नहीं आएगा. आपको सारे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, आपके कोई सर्टिफिकेट हैं, आपके कोई रजिस्ट्रेशन है, आपके कोई परमिशन है, सारा कुछ ऑनलाइन ई संचित के माध्यम से, विच इज एन ऑनलाइन पोर्टल. आप आइसगेट में ई संचित मॉड्यूल है, उसमें आपको लॉग इन करके अपलोड करना है, या आप करोगे या आपका CHA करके दे देगा. बट इट विल बी लिंक टू योर शिपिंग बिल, एंड विद दिस ई संचित मॉड्यूल वेयर documents which you are there wanting to submit to the customs will get uploaded, it will get linked to your shipping bill. यहाँ तक पे कि आपका import अगर है तो even duty payment and everything is obviously now linked. I'll come to GST, but even your GST validation details are on IceGate. In short, IceGate has become your one-step portal for all your custom related inquiries. I'm sure most of you have an IceGate login ID. अगर आपके पास IceGate login ID नहीं है तो आप उसका बना सकते हैं. आपको एक IC नंबर लगेगा, आपका एक अथॉरिटी लेटर फ्रॉम पार्टनर, प्रोप्राइटर या डायरेक्टर के लिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड का कॉपी, आपका कितने कौन से पोर्ट से आप ले रहे हैं उसका सिलेक्शन है,
एक क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर लगेगी फॉर यू टू अप्लाई, एंड यू कैन यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड जावा टू क्रिएट योर लॉगिन आईडी। एक बार लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया तो आप उससे सारा एक्सेस कर पाएंगे। We've already moved in customs from paper based to paperless. फेसलेस तो होना ही है, बट कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस भी हम हो गए हैं। एक्सपोर्ट के एंगल में अगर हम देखें तो जो आई एम श्योर all my panelists, right from Karan ji, Deepak ji, Pradeep ji, Hiten bhai and everybody, जो इतने सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो शिपिंग बिल इतना फोकसली देखते हैं, और they use many of us use that magnifying glass to make sure कि नंबर समझ में आए, ये 6 है कि 5 है कि 4 है, क्योंकि जो शिपिंग बिल की प्रिंट होती है वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की डॉट मैट्रिक्स प्रिंट आउट थी कि 6 और 0 या 5 और 9 में समझ में आना बहुत बार बहुत लोगों ने गलतियां की है रिपीटेटिवली, because there is no, the good news is we do not now, from June 2020 we do not have the print copies of shipping bills, we have the digital PDF copies, जो भी आपका अगर email ID आइसगेट पे रजिस्टर है तो आपको भी डायरेक्टली आ जाएगी, अदरवाइज आपका CHA भेजेगा, and the print copy looks something like this, which has fantastic properly aligned format, a QR code, हर एक fields are very clearly readable, it's an A4 size paper, आप इसको आपके लेजर प्रिंटर पे, आपके कलर प्रिंटर पे, आपके कोई भी प्रिंटर पे, ऑफिस पे, जब भी आपको चाहिए आप प्रिंट निकाल सकते हो, because it is a digital copy, you do not need any physical copy, and you can save it and record it. So now we have going to get a PDF digital version of EPC, your shipping bills, which is available through system, so you don't have to worry about it. I see this as a very big boon. Many exporters would have a practice कि हम technically रिकॉर्ड सेव करने के लिए स्कैन करते थे शिपिंग बिल्स को, डेटा को, सब कुछ, बिकॉज दैट वाज अ प्रैक्टिस एवरीबॉडी वुड हैव डन जब से आईटी वगैरह आ गया। अभी आपका ये काम, क्योंकि अगर आपके शिपिंग बिल 10 पेज के हैं और अगर आप एवरी वीक 10 शिपमेंट कर रहे हो तो आपको 100 पेजेस हर हफ्ते स्कैन करने हैं। अभी ये सारा काम आपका बंद हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव अ ऑटोमेटिकली डिजिटली सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल जो परफेक्टली आप सेव करके रख सकते हो, और प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, एज मेनी यू वांट। 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं कस्टम्स में, एक होता है आपका AD कोड, यानी आपका पैसा जहां पे आने वाला है, जो बैंक में आपका पैसा आएगा बायर से, एंड सेकंड आपका रिफंड, ड्रॉबैक या IGST रिफंड जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। पैसा जो बायर से आता है उसको हम AD कोड रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और जैसा आपका बैंक अकाउंट से आता है उसको बैंक रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये दोनों रजिस्ट्रेशन बैंक के लेटर के डॉक्यूमेंट के साथ मैन्युअली हो रहा था, अभी वो भी आप ऑनलाइन स्कैन करके बैंक के आइसगेट मॉड्यूल के थ्रू आप सबमिट कर पाएंगे। प्रोसीजरली ऑल्सो वी हैव गॉन कि आपका जो इंपोर्ट के टाइम पे जब कंटेनर आपका क्लियर होता है तो उसके लिए गेट पास और आउट ऑफ चार्ज लगता था, वो भी अभी ऑनलाइन हो चुका है, और आपका CHA को कोई फिजिकल कॉपी देने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा इंपोर्ट एंगल के हैं। इंपोर्ट में आपको बता दूं कि इंपोर्ट में हमने फेसलेस, आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज हर्ड इट ऑन न्यूज, इंपोर्ट हैज बिकम फेसलेस। हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बेंगलुरु कस्टम्स एंड चेन्नई कस्टम्स, देन इट केम टू बॉम्बे, दिल्ली, and now effective of 1st of November, that is effective of 31st of October, all India we are completely faceless, meaning आपकी जब भी bill of entry file होती है, depending upon various criteria, it gets assessed by an officer somewhere in other part of the India, anywhere, and based on the process and the guidelines, on merit it will check and it will process your bill of entry. So there is no intervention of individual nature. ये प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए हर एक कस्टम्स में एक तुरंत सुविधा केंद्र TSK करके बनाया गया है। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपके कस्टम्स क्लियरेंस नहीं हो पा रहे हैं या डिले हो रहे हैं, you can refer to or you can ask or you can discuss with the TSK officer and try and resolve the issues. Again, I would want to draw your attention on this one new update. इंपोर्ट रिलेटेड है, शायद सभी को नहीं लागू पड़े, बट इट इज गुड फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट में हम GSP फॉर्म या FTA के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे रहे थे, इंपोर्ट में भी आप इंपोर्ट का ये बेनिफिट ले सकते हैं FTA। जैसे अगर आप भरत भाई बता रहे थे इंडोनेशिया से, आप थाईलैंड से, आप वियतनाम से,
अगर आप कुछ रॉ मटेरियल या श्रीलंका से कुछ ला रहे हैं और अगर वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ला रहे हैं जिससे आपको ड्यूटी में कंसेशन है, एक नया रूल आ गया है विच इज कॉल्ड कारोटार 2020, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसमें ये बात है कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बट यू विल ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि ये एक्चुअल क्वालिफाई होता है या नहीं। तो एक बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन फॉर्म है, फॉर्म 1 करके, जिसमें आपको सप्लायर से इंफॉर्मेशन लेके रखनी है। ये सभी को शायद जरूरत नहीं पड़े बिकॉज सिस्टम पुल आउट करेगा, पर इश्यू ये है कि अगर सिस्टम पुल आउट करता है, लेट्स अज्यूम सिस्टम ने मेरा नाम निकाला, मेरा इंपोर्ट का जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, तो सिस्टम ने बोला नहीं आप मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरे पास कैरोटा रूल्स के अंदर 10 दिन का टाइम है जिसके अंदर मुझे ये इन्फॉर्मेशन कस्टम को प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज मेरा ये इंपोर्ट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं जाए के नॉर्मल ड्यूटी लगेगी और मेरे फ्यूचर इंपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम आने की संभावना है। इसके लिए आई शुड बी वेल प्रिपेयर्ड वेल बिफोर इंपोर्टिंग अंडर द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में कर रहे हैं तो कोई आपको ये कैरोटा रूल्स नहीं है, बट अगर आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कर रहे हैं तो कैरोटा रूल्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। I'm not discussing much on GST, which we are all aware of. Just quick pointers. It is an X0 rated. Refunds तो मिलते हैं, 2 ऑप्शंस है, LUT या पेड IGST, और it is system driven. LUT भी ऑनलाइन है. Just a couple of specific issues. अगर आपके SB 005 का एरर यानी जो इनवॉइस मिसमैच या डेट का मिसमैच का एरर है, तो 31 दिसंबर 2019 तक ये शिपिंग बिल आप रेक्टिफाई कर सकते हैं थ्रू कस्टम्स। जनवरी ऑनवर्ड आप नहीं कर पाएंगे, तो जनवरी 2020 के बाद अगर आपके कोई शिपिंग बिल में SB 005 एरर है तो आपको GST पोर्टल से ही उसको रेक्टिफाई करना है, मैन्युअली करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मैं ध्यान आपको देना चाहूंगा, अभी तक GST में एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट के बायर अगर पैसे नहीं दे तो GST अभी तक कोई इश्यू नहीं था। RBI, FEMA में I agree, incentives में I agree, there was a issue, you have to refund it back and get in, pay the interest and everything. GST never had an issue. However, in March, there is an amendment in the GST rules and a new rule has been added called 96B, जिसमें ये बोला गया कि अगर आपने refund लिया है input credit का या IGST का और within the stipulated RBI period, RBI का period 9 महीने का अगर है, आपको extension मिल गया है, जो भी है, अगर आपके stipulated period में अगर आपके buyer से पैसे नहीं आए, then you are required to refund the GST with interest in 30 days. तो GST जो आपको मिला है, refund जो आपको मिला है, वो आपको रिटर्न करना है with interest 30 days में। ये एक exemption है, लेकिन अगर आपने RBI के norms में एक write off का provision है, अगर आप राइट ऑफ करते हो तो आपको ये रिटर्न नहीं करना है, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है। तो जैसे आप ड्रॉबैक रिटर्न करते थे, जैसे आप अपने कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिटर्न करते हैं, सेम वे आपको GST भी रिटर्न करना है। एक नवंबर 1 को बहुत सारी, जस्ट बिफोर नवंबर 1, आई थिंक 30 सितंबर एक्चुअली, नॉट इवन नवंबर 1, बहुत डिस्कशन हो रहे थे काफी ग्रुप्स पे, काफी एक्सपोर्टर्स के, कि 1 तारीख से तो हमको फ्रेट के ऊपर GST लग जाएगी, एक्सपोर्ट फ्रेट के ऊपर, बिकॉज जो नोटिफिकेशन थी वो 30 सितंबर तक की थी। यहाँ तक मुझे मालूम है कि काफी शिपिंग लाइन ने सर्कुलर या इंटरनल नोट निकाली थी कि भाई हम कल से जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे हम फ्रेट के ऊपर GST चार्ज करेंगे। 30 सितंबर रात को 11:30 बजे नोटिफिकेशन आ चुका था कि ये जो एग्जेम्पशन है GST का is extended for 1 more year, meaning 31 सितंबर 2020 नहीं, 31 सितंबर 2021 तक एक्सपोर्ट जब आप करेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर और सी फॉर कस्टम क्लियरेंस आउट ऑफ इंडिया विल नॉट बी having any GST. GST is exempted on it, so you don't have to pay GST and nobody is charging you GST. No shipping line or airline is going to charge you GST on freight, by the way. Last, क्योंकि MSME काफी सारे हम है, I thought it is very valid to add that we have moved from उद्योग आधार to उद्यम registration for MSME. MSME की नई definition आ चुकी है, जिसमें plant and machinery as well as turnover गिना जाता है. So if you are a micro unit, it is plant and machinery 1 crore, turnover less than 5 crores, small 10 crores,
turnover less than 50. Medium, it is 50 crores, turnover less than 250. इसमें एक दिक्कत अभी भी है, and I will request Pradeep ji and EPCH to take it up with Ministry of MSMEs कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स को इसमें नहीं डिफाइन किया गया है, इसमें नहीं अलाउड है. So merchant exporters who do not have any manufacturing setup, they are by definition not covered under MSME. So a lot of merchant exporters are facing this challenge because their suppliers who are, let's say, a manufacturer, वो MSME है, but वो खुद जो foreign exchange earn करके ला रहे हैं, जो export कर रहे हैं, because they are a trader, because they are a merchant exporter, they by definition are not covered under MSME definition, which probably a representation can be pushed forward to the Ministry of MSME and looked into it. So Udyam registration as a new website. All those who already have a Udyog registration can migrate to Udyam or apply for a new registration. So that will take care of your MSME. It's an instant online process. Certificate gets generated on self-declaration. There is nothing very fancy or very difficult to create that application. It's just a basic information which is required, and that should give you your registration. Lastly, I just want to end with one Charles Darwin quote, which says, "It is not the strongest of the species that survive and not the intelligent that survives. It is the one who is adapt to change." And today the change is that we have to move not only as an exporter, but a digitally compliant exporter, because everything is now going to become online, simplified, updated on a regular basis. With this, let me thank you all of you again for your patient hearing. The presentation will be available to you. I will make sure it is shared with EPCH as well. However, if you wish to download, the link is available. I will type the link in the chat box. It is speakerschool.com. Today's date 20/11/20. All right. With this, thank you very much. Thank you, Pradeep ji. Over to you. थैंक यू मीर भाई, काफी आपने इंफॉर्मेटिव बातें बताई और लोग हमारे से जुड़े हैं. हमें और कुछ प्रश्न होगा तो हमें जरूर पूछेंगे और हम आपके पास आएंगे. एक्चुअली हमारे अशोक बूब जो हमारे वेस्टर्न रीजन के कन्वीनर हैं, उनका और ईपीसीएच का एक जो बेसिक मोटिव है कि हमें यहाँ नए एक्सपोर्टर कम्युनिटी खड़ी करनी है. हमें प्रेजेंट एक्सपोर्टर्स को कोई भी हेल्प कर सके तो करनी है. अभी मैं देख रहा था क्वेश्चन आंसर में कि कोई पूछ रहा था कि भैया मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज्ञान दीजिए, मैं कैसे करूं, मुझे कुरियर का प्रॉब्लम आ रहा है. तो हमारे ईपीसीएच ने एक एजुकेशन कोर्स चालू किया है, जो मैं मिस्टर कृष्णा से कहूंगा कि अभी इन सबके साथ शेयर करेंगे. जिनको भी बिजनेस सीखना है वो कृपा करके ये वर्चुअल कोर्स ज्वाइन करें. 55 घंटे का कोर्स है, 2 महीने में पूरा होता है. पूरा ज्ञान दे देंगे आपको और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे. ये हमारा पूरा आइडिया था. ओके, अभी मैं मिस्टर करण जेठवानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बताएं, कुछ 2 बातें शेयर करें. करण जी प्लीज. करण जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Yeah. Thanks, Pradeep, and thanks, Mihir, for your very informative presentation. जो टॉपिक था वो तो मिहिर ने पूरा कवर कर लिया. खाली एक और बात कहना चाहूँगा. अगले वेबिनार में मैंने एक बात कही थी कि जो हमारा होम डेकोर सेक्शन है, होम सेक्शन, that is going to be a sunrise sector during the special times, and that has indeed come very true. अगर आप आज की पोजीशन देखें, जो होम आइटम्स हैं, जैसे अमू के होम टेक्सटाइल्स के मुझे इतनी नॉलेज नहीं, पर हार्ड गुड्स की जो आज पोजीशन है, चाइना से डिलीवरी पीरियड इसका मई टू जुलाई चल रहा है. माना इफ यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर विद चाइना for your hard goods and decor items, the delivery period is 7 to 9 months. Now that creates a lot of scope for India to step in. Vietnam is taking a lot of advantage of this. Thailand is taking a lot of advantage of this. And if India steps up, I see most of the home decor item exporters can literally double up of last year's turnover, and it is there just for grabs. I can assure you that. I've been speaking to a lot of my buyers overseas, and everybody is like
जो भी है, we are ready to buy even your stocks. तो आज से 4 महीना पहले, 5 महीना पहले ऑर्डर कैंसिल करने का बोल रहे थे, आज वो कोई भी प्राइस में आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार है, as far as you can deliver ASAP. Now, let's not think about trying to just capitalize on current situation when the buyer needs the goods. This is also a very good time to build up a rapport with the buyer, so you become his supplier of choice. And believe me, I know a lot of home sector companies who have been telling me, like I know a couple of groups who are into fashion to home decor. उनके CEO से मैं बात कर रहा था. He said all the time हम वही compare करते थे कि home decor की business थी, उसकी year on year growth होती थी 5 to 10%, whereas fashion was growing much more higher. In this last 4-5 months, the home decor or home items have really, they are doing at least 30 to 40% year to year higher than last year. And that truly is a sunrise sector for us, and we can really take good advantage. And I urge our exporters to look into that and create a supply chain for your buyers whom they can rely upon not only now and carry on with you in time to come. I was also talking to Rakesh ji a few days back. He said Muradabad is doing excellent. A lot of people who are literally flushed with orders. Not everyone, people who can really work very fast, who can deliver very fast, are really reaping the benefits. With that, I hand it over back to you, Pradeep. Karan ji, one question. बातें कही है करण, इसके ऊपर हमारे EPCH के DG राकेश कुमार जी बहुत जोरों से लगे हैं. बहुत वैलिड पॉइंट कहा है आपने. और राकेश I was talking to Rakesh 2 days back. He was also मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि राकेश जी ने पूरा एक बाइंग एजेंट एसोसिएशन के साथ में एक टाई अप किया है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये चीज आगे बढ़े. अच्छा, मैं हितेन भाई भालारिया से कहूंगा 2 शब्द कहें प्लीज. हितेन भाई. मैं करण जी की बात से बहुत सहमत हूं, और ऑनलाइन जो कंपनियां काम करती थी वो ऑनलाइन कंपनियां 4 गुना ऑर्डर भेज रही है. पहले लेती थी 4 गुना से, मैं तो कहूं कोई तो 6 गुना. We cannot, India as a superb, I fully agree with you what you have suggested. Somebody for home purpose or bar or the line that घर में यूज होती है, ऑनलाइन चीज लोग मंगाते हैं, that's a one thing. और आज जो हमें सेमिनार में जानने को मिला, नॉलेज मिला, गवर्नमेंट, इसका मतलब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट करप्शन और अदर थिंग्स को बंद करके हाउ टू स्मूथ के डायरेक्शन में है. दैट्स अ वेरी गुड मूव. एवरीथिंग गोइंग ई-कॉमर्स और ई computerized, so no intervention of human, minimum error, minimum problem and fast result. It's a good sign for us. और बेनिफिट के बारे में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. बहुत साल तक बच्चे को उंगली देके बड़ा किया, अब बच्चे को खुद को दौड़ना पड़ेगा. अब इंसेंटिव भूल के धंधा करो. आपका धंधे में दिक्कत है वो दूर करने की बात करो. इंसेंटिव पे इंसेंटिव मांग के माँ को परेशान मत करो. ऐसा मेरे को लगता है गवर्नमेंट इज थिंकिंग 50 साल तक दिया, अब कितने साल देने का है. Incentives and reservations are the 2 biggest curses we should leave behind with us and work forward. बहुत सही बात कही है आपने हितेन भाई, सही बात कही है. मिस्टर आमिर जवेरी, आप भी तो हैंडीक्राफ्ट में जोधपुर वगैरह का काम करते हैं. आमिर भाई, आप 2 शब्द कहेंगे प्लीज. Yes, Pradeep bhai, thank you. Mir bhai, thank you for very in-depth knowledge that you shared. Karan ji and हमारे हितेन bhai, thank you very much. And what very rightly Karan ji said कि in this present scenario, we have to concentrate more on our strength rather than depending or parasiting on the government. So our core in-depth positiveness of our work, be it design, be it our factory, be it our to have the products done with the minimum expense and try to produce something good.
then we can be a winner rather than parasiting on government. Yes, I would very strongly think on that. वेरी ट्रू आमिर भाई, वेरी ट्रू। दीपक भाई, आप भी फर्नीचर के ट्रेड में हैं, आप दो शब्द कहेंगे प्लीज? Yes, what I would like to share is the only access to get orders is online, and we are on the 7 online platforms, and we are on the top of the platforms, and even in this COVID time, we have not experienced any dearth of any orders. So online is the in thing. The faster we can get this expertise and coming on these various online platforms, the larger will be the advantage. Like Mr. Karan said, home decor is a very fine thing, and quality is the most important thing that we need to manage. Quality and quantity and perfect delivery, so that we get the best testimonials on online. And buyers always come on the basis of the testimonial that you receive on online, and that is how they place orders, because they have not seen you, they have not even met you. They're just sending the money. The only access is your testimonials and the quality that you give. So that is what I wanted to share. दीपक भाई, वेल सेड। अमू भाई, एक बे शब्द कैसो प्लीज। अमू भाई, आप कुछ शेयर करेंगे होम फर्निशिंग या किसी मैटर में? Thank you, Pradeep bhai. As always, Mihir bhai was brilliant in giving this information on DGFT, new things, which are required now. I always enjoy, his speech, because it is very, very informative. And we Bombay exporters are taking it very lightly, this kind of seminars, The participations are very thin, In fact, everybody needs to attend this kind of seminar, particularly जो छोटे exporters है, उनको मेरे को खास बोलना है कि अगर आप अपडेट नहीं हुए, ये जो DGFT के जो नए जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, तो आपके एक्सपोर्ट्स अटक सकते हैं और आप ये एक्सपोर्ट बिजनेस में से ही बाहर हो जाओगे। एक छोटी चीज के लिए, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, अगर आपको उसका रूल ऑफ द गेम नहीं मालूम है, तो आप घूमते रहोगे। मेरा एक एक्सपोर्ट था, थैंक्स टू मीर भाई, सजेस्टेड मी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, और वो मेरा टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बन गया। वरना एलसी के हिसाब से मेरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर नहीं बनता, तो वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होता और एलसी मेरा इनकम्प्लीट होता और मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो मेरे सब छोटे एक्सपोर्टर्स भाई बहनों से खास अर्ज है कि ये जो हमको नॉलेज देने में आता है ईपीसीएच की तरफ से, हमारे वेस्टर्न इंडिया रीजन की तरफ से, अशोक बुक जी का और प्रदीप जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि दिस इज वेरी वेरी वाइटल नाउ फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। बड़े एक्सपोर्टर्स तो क्या है कि अच्छे स्टाफ बाय कर लेंगे, लेकिन हम अभी अपने स्टाफ पे खाली डिपेंड करके डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। एक्सपोर्ट्स का काम अभी भले वो सब पोर्टल पे हो गया है और ऑनलाइन हो गया है, बहुत इजी हो गया है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स है उनको भी इसका, ओनर्स को particularly, the owners also should have some basic knowledge about documentation. Otherwise, staff will take them for a ride and then you will have a lot of problem. Thank you very much, Mir bhai again. Thank you, Pradeep bhai and Ashok bhai once again. नहीं, थैंक यू अमू भाई, आपने बहुत बढ़िया बात कही और सही बात कही कि बड़ा एक्सपोर्टर तो अपना रास्ता निकाल ही लेगा। हम ईपीसीएच वाले जो हमारे अशोक भाई जो मेहनत कर रहे हैं सबके लिए कि भैया छोटे एक्सपोर्टर को पूरी हेल्प मिले, और जो एक्सपोर्टर नहीं है वो एक्सपोर्टर बने और आगे बढ़े। अच्छा, हम करीब करीब आज के प्रोग्राम को पूरा कर चुके हैं। अब मैं हमारे कन्वीनर अशोक भाई बूब से कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें और प्रोग्राम यहाँ खत्म करेंगे। अशोक भाई प्लीज। अशोक भाई आप अनम्यूट होइए। अशोक भाई नहीं, आपका स्पीकर म्यूट है। अशोक भाई उसे खोलिए। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में जाइए अशोक भाई। अशोक भाई आपका स्पीकर म्यूट पे है। अशोक भाई आप लेफ्ट पे नीचे जाइए और उधर माइक है, उसको आप खाली बस टच करिए तो आपका अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, हो गया, अभी हो गया। हाँ, आइए अशोक भाई, वेलकम। हाँ, दीपावली की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। नए वर्ष में आपका एक्सपोर्ट खूब बढ़े, देश का नाम बढ़े, देश पे भगवान की कृपा हो, खूब फॉरेन एक्सचेंज आवे अपने को,
ये शुभकामना के साथ में मैं आप सबों से ये विनती करता हूँ कि जैसे हितेन भाई ने बोला ना कि इंसेंटिव को छोड़ो अभी। जी कितने साल तक इंसेंटिव लेंगे अपन? इंसेंटिव को दिमाग से निकालो और काम को आगे बढ़ाओ। खाली दिमाग अपना इंसेंटिव पे लगाए रखेंगे ना तो काम नहीं बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट को पूरी एक्सपोर्ट की तरह से काउंट करो आप, पूरा ध्यान दो उस पे, एक्सपोर्ट पे, ताकि और उसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, प्राइस में कम्पिटेटिव प्राइस होनी चाहिए। ये सब बातें सारी मीर साहब ने बताई और सारे सब लोगों ने बताई। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि एक्सपोर्ट पे ध्यान दो और आगे बढ़ो, इंसेंटिव को छोड़ो अभी। ओम गणेश। थैंक यू अशोक भाई, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और उनको कभी भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मैटर में अटके हो, कृपया हमें याद करें। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू फुल्ली। So we conclude our today's session. I thank you all panelists. Thanks Mihir bhai. Thank everybody. Have a nice day. Bye bye.